ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚੋਂ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਸੇ ਪਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਇਹ 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਬੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਬੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੀਮ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਬੀਪੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ, ਪੀਡੀਐਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਬੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀਡੀਐਫਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਡੀਅਮਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਛੇਤੀ ਆਜੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਵੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਵੀਕ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਣਾ, ਬੰਡਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਡਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਜ਼ਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਲੋਕ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਐਮਸੀਕਿਊ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਿਊ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 330 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਟੀਮ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 2026 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਲਿਖਣ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ? ਮੈਂ ਮੇਲ ਲਈ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਥਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਫ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਰਫ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਸਰਕਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ।
मेल का मतलब की हो गया मेरे लिए जिवें फादर सन, ठीक है। फीमेल का मतलब हो गया मदर या डॉटर, ठीक है। दो सिंबल समझ आए। हुण जद मैं ये दो सिंबल्स दे विच आ डबल लाइन करदा, ਇਹਦਾ मतलब हो गया दे आर मैरिड, दे आर मैरिड, ठीक है। जद मैं स्क्वेयर दे विच सिंगल लाइन बनावा, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि दे आर ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तीसरी गल की है, जे मान लो मैं बॉक्स बनाया तो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि इट इज़ अ मैरिड कपल। जब मेरे थल्ले इदा बना के एक बॉक्स बना दा या फिर एक सर्कल होवे, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ क्या हो गए सन या डॉटर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्या ध्यान रखना है कि ਜਿਹੜੇ ब्रदर सिस्टर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं आप सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होंगे ने ਜਿਹੜੇ आपस ਚ क्या होंगे ने भाई भैन होंगे ने या भैन भैन हो गई भाई भाई हो गया, ये सब क्या होंगे ने सिबलिंग्स होंगे ने, ठीक है। सबने इन्ना क लिख लिया, रेस कर दे, मैं रेस करन लग गया, एक मिनट और लै लो ते लिख लो इन्नी गल्लां। आ जाओ हुण थोड़े जे होर रिलेशन समझ लो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे हुण बना रहा एक, अच्छा फैमिली रिलेशन च ना एक गल ध्यान रखियो कि इत्थे जिहड़ी मैरिज है वो मेल ते फीमेल दे विच ही हुंदी है। मतलब हले यह जे क्वेश्चन नहीं बनते कि फीमेल फीमेल दे विच मैरिज हो रही है, मेल मेल दे विच मैरिज हो रही है। इत्थे क्वेश्चन यही बनते कि मेल ते फीमेल दे विच मैरिज हो रही है, ते हर चीज़ इदा ही वो चलती है, ठीक है। हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं हुण इत्थे बना दा, हुण जिहड़े बच्चे ने ना मान लो ये बच्चों का नाम मैं रख दिना, एक तो अपना ही नाम ले लेना मैं, एक नाम मैं ले लेना अपनी सिस्टर ले लेना, ठीक है। ये हो गए मेरे फादर, कौन हो गए ये मेरे फादर, ये कौन हो गए मेरे मदर, ठीक है। हुण मेरे फादर के जिहड़े अगे पेरेंट्स ने वो मेरे हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, ते जिहड़े मेरे मदर के पेरेंट्स ने वो भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने, पर फर्क है ये भी ग्रैंड पेरेंट्स है, ये भी ग्रैंड पेरेंट्स, पर आ की ने ये ने पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। पापा तो की याद रखना है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पापा तो की याद रखना है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ, मतलब कि अपने नाना नानी। ये कौन हो गया अपने दादा दादी, ठीक है। हुण जो शिवम दे वाइफ ने, ठीक है, इन्हां नूं आपां कहने स्पाउस, क्या कहने आपां इन्हां नूं स्पाउस। स्पाउस की हुंदा है दूसरे दा मैरिड कपल का दूसरा पार्ट, ठीक है। ते इदां ही ये भी इन्हां दे हो गए स्पाउस। अदरवाइज मेरे सिस्टर दे जो स्पाउस ने ओहदे की हो गए हसबैंड, जो मेरे स्पाउस ने वो की हो गए वाइफ। मैं ते मेरी सिस्टर की हो गए सिबलिंग्स, एक ही हो गए साडे पेरेंट्स। समझ आया सब नूं? ये बना लो अपनी कॉपी च, जिन्ना दा अपने अपने अपना नाम लिख लो इत्थे, है ना, किसे इदा बना लो। हुण समझ आया पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, दिस इज अ मैरिड कपल, दिस इज अ मैरिड कपल, ये भी मैरिड कपल है, ठीक है। ये दादा दादी हो गए, इस तरफ नाना नानी हो गए, ठीक है। ये मेरी सिस्टर होगी, ये मेरी वाइफ होगी, उन्होंने हसबैंड हो गए। समझ आया सब नूं? ब्लड रिलेशन का बेसिक समझ आया सब नूं?
जे नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, दोबारा देखो, वीडियो पॉज करो, दोबारा जाओ, पिछले शुरू करो, जो हाले पिछला पार्ट कराया सी वो तो शुरू करो ते इहनूं देखो। ये आना सब तो ज़्यादा जरूरी है, वो तो बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वो बिना क्वेश्चन अपने सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, चलो शुरू करिए अगे, क्वेश्चन शुरू करिए, आ जाओ। ओके, ये कहता यू इज द फादर, पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, देखते हैं, है ना। ये कहता यू इज द फादर ऑफ एन, जे फादर है ਇਹਦਾ मतलब की हो गया मेल हो गया, मैं ਇੱਥੇ बनाता n, बट ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ कि n ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ कि n ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ n इज द सिस्टर ऑफ t, n इज द सिस्टर ऑफ t, ਇਹਦਾ मतलब n क्या होगी, फीमेल होगी। जब मैं सिंगल लाइन बनाने का मतलब क्या होंगे, ये ब्रदर सिस्टर कुछ ही हो सकते, पर क्या दसिया टी ब्रदर है क्या सिस्टर है, नहीं उन्हें नहीं दसा मैं टी ब्रदर है क्या सिस्टर है, पर छाड़ता। फिर कहते टी इज द वाइफ ऑफ आई, ਇਹਦਾ मतलब टी की है वाइफ ऑफ आई है, वाइफ है तो की होगी, फीमेल होगी। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ आई, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब आई क्या हो गया, मेल। ठीक है, ये कहता आई इज द सन ऑफ एल, आई इज द सन ऑफ एल। ठीक है, हुण इहने फिर दस्सिया कि एल फादर है कि मदर है, समझ आ रहा तुहानू, इहने नहीं दस्सिया एल फादर है कि मदर है, समझ रहे हो। पर क्वेश्चन की पूछे हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, हुण की हो गए ये रिलेशन इन लॉज हो गए, इन लॉज का रिलेशन हो गया इन्हां दा, क्यों, क्योंकि इन्हां दी बेटी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मतलब ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਨ ਲॉज ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਇਨ ਲॉज ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਲॉज ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਨ ਲॉज ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, नो रिलेशन और रिलेशन नॉट जस्टिफाइड, रिलेशन नॉट फाउंड या रिलेशन नॉट जस्टिफाइड। समझ आया है क्वेश्चन, बनाना आया कि मैं बनाया है, मैं समझ रहे हो इस गल नूं। चलो अगले क्वेश्चन चलिए, चलो आला क्वेश्चन कर दें। ये कहता बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है जी, जे बी ब्रदर ऑफ ए है मैं बनाता, पर इन्हें दस्या ए हाल तक की है नहीं, ये कहता सी इज द सिस्टर ऑफ बी, चलो सी इज द सिस्टर ऑफ बी का मतलब की होगी फीमेल होगी। कहता डी इज द फादर ऑफ सी, जे डी ए का फादर है मतलब डी ए का भी फादर है, डी ए का भी फादर है, तो मैं डी नूं इदां बनाता, ठीक है। ये कहता ए इज द सन ऑफ ई, जे ए दा भी सन है ਇਹਦਾ मतलब ई ਦਾ भी सन ही होगा, है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब ई क्या होगी, या तो हस्बैंड है या दी वाइफ है, डी दी क्या होगी, या तो हस्बैंड होगा या वाइफ होगी, पर मैंने ये नहीं पता कि कौन की है, ठीक है, हाले तक मैंने कुछ नहीं पता। फिर ये की कहता, इन्हें दस्या कि डी फादर है, ठीक है, इन्हें दस्या डी इज द फादर, ਇਹਦਾ मतलब ई क्या होगी, मोम होगी, डी इज द फादर तो डी फादर हो गया, ठीक है। हुण ये कहता कि अगे आ गया ਆਪਾਂ ए इज द सन ऑफ ई, ए इज द सन ऑफ ई, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दे बच्चे हो गए, ठीक है, तीनों की हो गए बच्चे हो गए। हुण कहता सी इज मैरिड टू एफ, सी इज मैरिड टू एफ, ਇਹਦਾ मतलब एफ की हो गया ਇੱਥੇ बनाता। हुण कहता ए इज मैरिड टू जी, ए इज मैरिड टू जी, हाले तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता, हुण ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ने कि ए इज द सन ऑफ ई, ਇਹਦਾ मतलब ए क्या हो गया ਇੱਥੇ मेल हो गया, जी क्या होगी फीमेल होगी, जी क्या होगी फीमेल होगी। चलो ये कहता हम आप इत्थे तक पहुंच गए। हुण कहता एच इज द सन ऑफ जी एंड ए, एच इज द सन ऑफ जी एंड ए, अगे खोद एच क्या हो गया मेल हो गया, खत्म। कहता आई इज द सन ऑफ सी एंड एफ, कोई गल नहीं, आ लो जी, ਇਹਦਾ मतलब आई ते एच आपस च की हो गए, याद रखना की हो गए ये कजन्स, कजन्स होंगे ने ना, चाचे मामिया के बच्चे होंगे ने उन्होंने की कहने कजन्स, की कहने आप कजन्स। आ जाओ बस हम अपना पूरा फैमिली चार्ट बन गया, ब्लड रिलेशन बन गया, कुछ भी नहीं है, हम तो बस आंसर ही दसने आप की क्वेश्चन है। कहता हाउ जी इज रिलेटेड टू डी, जी डी नाल किवें रिलेटेड है, जी की है डी दी डॉटर इन लॉ है, की है डॉटर इन लॉ, मतलब जिहड़ी अपनी वाइफ होंदी है वो अपने पापा की लगती है, जिहड़े मेरे पापा ने ते मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ मेरे पापा ली डॉटर इन लॉ लगी, ते मेरे पापा मेरी वाइफ ਲਈ ਲੱਗੇ फादर इन लॉ ਲੱਗੇ, जिन्हां ਦਾ डायरैक्ट रिलेशन नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैरिड ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फादर इन लॉ या डॉटर इन लॉ, क्या कहने हैं फादर इन लॉ या डॉटर इन लॉ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ मैं की कहूँगा जी इज दी डॉटर इन लॉ,
पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की है हाउ इज एच रिलेटेड टू ई। एच की है ई तो की में रिलेटेड है, तो एच की हो गया ई द ग्रैंडसन। क्या हो गया? ग्रैंडसन। क्यों? क्योंकि ई दा बेटा ए दा बेटा एच, जिवें तुसी अपने दादी दे की लगे पोते, ग्रैंडसन क्या हुंदा? पोता होना। की होया दा आंसर? ग्रैंडसन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी अपना हो गया। उन्हें कहता हाउ एच इज रिलेटेड टू आई। एच आई दे की आपस च कजन्स, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹਟੇ ਇਹਦਾ क्वेश्चन मैं पहले ही ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर। गलती होगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। समझ आया सब वाला क्वेश्चन? समझ पा रहे हो? 2 मिनट रुका, सोच लो हले। हालो 1 मिनट पोज ले रहे हैं, करो देखो की बनाया आप। डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ सब समझ आया? चलो आओ अगले चलिए। ओके आ जाओ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ P Q R S T U are 6 members of a family in which 2 are married couple। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 4 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ। ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ P is a teacher who is married to a doctor। P is a teacher, P is a teacher who is married to a doctor। ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ P Q R S T U, ਆਪਾਂ T ਤੱਕ ਕੱਢਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਆਫ R ਐਂਡ U। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਫੀਮੇਲ। P ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਮੇਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ R ਐਂਡ U। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੇ R ਤੇ U। ਇਹ ਆਪਸ ਚ क्या हो गए? सिबलिंग्स। ठीक है, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ R ਵੀ ਕੱਟਤਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ U ਵੀ ਕੱਟਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ Q is a lawyer। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ Q ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ Q is a lawyer who is married to P। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Q is a lawyer who is married to P। ਠੀਕ ਹੈ, P has 1 son and 1 grandson। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ P has 1 son and 1 grandson। ठीक है, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ QP ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ? RTU ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤੀ ਕਿ P has 1 son and 1 grandson। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ Q ਤੇ P ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, Q ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲਾਇਰ। ਆ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਆ ਲਓ ਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ठीक है, इन अ मैरिड कपल 1 इज अ हाउस वाइफ। हूँ मैंने पता है कि टीचर है, ये डॉक्टर है, लॉयर है, तो मैरिड कपल सिर्फ 2 ने, तो मतलब P क्या होगी अपने को? हाउस वाइफ। थोड़ा जिहा ना मेरे क्वेश्चन का लैवल मतलब ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि सीरीज 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ज्वाइन कर रहे हैं जिन्हों का थोड़ा बहुत उन्होंने पहले तो पता है ना। एक क्वेश्चन मैंने पता कि एक वधिया पजल है, मतलब ये ब्लड रिलेशन भी है, पजल भी है। मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਪੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਜ਼ਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। Q P कर लिया, T S कर लिया, R U कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ देयर इज वन ग्रैंडसन, मतलब R ਤੇ U ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, देयर इज वन स्टूडेंट इन फैमिली एंड वन इंजीनियर, इंजीनियर इज नॉट अ फीमेल। ठीक है, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਫੀਮੇਲ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ ਨॉट ਅ ਫੀਮੇਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। He has one son, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ 1 grandson। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ R ਤੇ U ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਆਰ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਫੀਮੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਰ ਮੇਲ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਯੂ ਕਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਯੂ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫੀਮੇਲ, ਜੇ ਯੂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੋਗੀ, ਫੀਮੇਲ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬਸ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਾਇਰ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਾਇਰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, अब मैं दस ही चुकिया कि इंजीनियर मुंडा है, जी इंजीनियर मुंडा है तो लॉयर कौन है, दादाजी, तो क्या हो गया, ये हो गया ग्रैंडसन। ये कौन हो गए, ग्रैंडसन। अगला क्वेश्चन की है, हाउ इज द हाउसवाइफ, हु इज द, मतलब इतना सी, हु इज द हाउसवाइफ, हु इज द हाउसवाइफ एंड हाउ इज शी रिलेटेड टू यू। बड़ा आसान है, हाउसवाइफ अपने कोल कौन है, आप क्लीयरली फाइंड कर लिया, पी। तो यू दी की लगती है, दसो, ग्रैंड मदर, दादी लगी ना। समझ आया सब नूं ये, ले लो 2 मिनट लो, आराम नाल गल नूं समझो कि इत्थे होया की है, फिर आपां अगे वधीए। आ लो मैं सैड हो जाना, तुसीं देख लो की आपां करिया। कुछ नहीं सीगा, टी टे 2 मैरिड कपल सी, क्यू ते पी, ते टी एंड एस। टी टीचर है, एस डॉक्टर है, क्यू लॉयर है, पी हाउसवाइफ है। आर एंड यू चो अपन हाल तक ये गल क्लीयर नहीं हुई है कि कौन ग्रैंडसन है, कौन ग्रैंड डॉटर है। पर अपन को यह गल जरूर पता है कि जो ग्रैंडसन है वो एक मेल है, तो इंजीनियर है, तो जो ग्रैंड डॉटर है वो फीमेल है, तो वो कौन है, स्टूडेंट है। बस ये गल अपन क्लीयर हुई सी, पर यह हले भी नहीं क्लीयर कि आर ते यू विचों मुंडा कौन है, कुड़ी कौन है। आया सब नूं समझ। चलो आओ अगे चलिए, अगला करिए, आ जाओ अगला देखते हैं आप। ये कहता कि फैमिली ऑफ 8 persons has 3 married couples. Emily is the maternal grandmother of Charles and is the mother-in-law of Floyd. और मैं दस्से सी मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब क्या होया, मैटरनल ग्रैंडमदर तो नानी हो गई, ठीक है। ये कहते कि 8 मैंबर ने जिन्होंने 3 मैरिड कपल ने। उन्हें कहती शी इज द मदर इन लॉ ऑफ फ्लॉयड, पहले आप फ्लॉयड बना लेंगे। फ्लॉयड नाल कोई मैरिड है, ओबवियसली फ्लॉयड का मतलब हस्बैंड हो गया, इन्हों की वाइफ है, वाइफ की मदर कौन है, एमिलिया, एमिली, ठीक है। चलो उन्हें कहती इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स, ਇਹਦਾ मतलब इन्हों एक बच्चा है जिसका नाम है चार्ल्स, पर अपन नहीं पता चार्ल्स मेल है फीमेल है। ये गल ध्यान रखो कि पेपर च हो सकता है कि वो कोई मेल नेम दे के उन्होंने फीमेल कह दे, कन्फ्यूज नहीं होना। जब तक ब्लड रिलेशन च क्लीयरली मैंशन ना हो कि वो कौन है, तब तक तुम नहीं मानना कि वो मेल है फीमेल है। हाले अपन नहीं पता चार्ल्स मेल है फीमेल है, ठीक है। एमिली का मैं गोला बनाता क्योंकि उन्हें दसिया शी इज द ग्रैंड मदर। उन्हें कहता हैलन इज द डॉटर ऑफ बॉब हु इज द ब्रदर ऑफ जॉर्जी, ठीक है। ये कहता हैलन इज द डॉटर ऑफ बॉब, एक बंदा है बॉब और डॉटर है हैलन, ठीक है। आ लो गोला, ठीक है। एंड बॉब, हेलन इज डॉटर ऑफ बॉब हु इज द ब्रदर ऑफ जॉर्ज। आ कौन है, ब्रदर ऑफ जॉर्ज है, ठीक है। सिंगल इनके शो कर दिया अपन सिबलिंग्स ने। डियाना इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज, डियाना इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज। आ लो डियाना इज द ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज एंड इज द मदर ऑफ चार्ल्स। बस क्लियर हो गया था, मतलब इतने कौन होगी, डियाना आ गई जी इतने। आ लो आ डियाना आ गई अपने को क्योंकि दसता, ठीक है। हुणे एमिलिया दी बेटी सी, जे एमिलिया दी बेटी ते जॉर्ज दी क्या हो गया, ਇਹਦਾ फादर हो गया, ठीक है। अपने को 8 बंदे सी हुण तक, ते जॉर्ज दा ब्रदर कौन है, बॉब, बॉब दी बेटी कौन है, हेलन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 बंदे हो गए, जबकि अपने को 8 बंदे होने चाहिए सी। यानी कैसी 3 मैरिड कपल ने, अपने को 1 मैरिड कपल 2 मैरिड कपल हो गए, ठीक है। एमा इज द वाइफ ऑफ बॉब, बस खत्म। ये कहता एमा इज द वाइफ ऑफ, आ लो बनाता, समझ आया सब नू। दोबारा बनाना तो क्योंकि साफ नहीं सीगा। देखो उन्हें की किया, अ फैमिली ऑफ 8, एमिली इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ चार्ल्स एंड मदर इन लॉ ऑफ फ्लॉयड। इत्थे मैं बनाया फ्लॉयड, फ्लॉयड का अगे बेटा है बेटी जो भी है चार्ल्स,
ठीक है। इन्हां दी वाइफ है फ्लोइड दी, ठीक है। उन्हां दी मदर का नाम है एमिली, ठीक है। आ लो आ बनाता आप। उस तो बाद मैं की कहा सीगा कि डियाना इज द ओनली चाइल्ड, इत्थे आ गई डियाना। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ, दसो, शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ जॉर्ज, ठीक है। हुण की कहंदा जॉर्ज दा ब्रदर कौन सीगा, बॉब। बॉब दी वाइफ कौन है, एमा। इन्हां दी बेटी का नाम की सीगा, दसो। हेलन, ठीक है। हो गए 8 बंदे अपने को। हुण देखो उन्हें पहला क्या सी, फैमिली ऑफ 8 पर्सनस हैव 3 मैरिड कपल्स, 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल, 8 बंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलन की है टोटल है, खत्म। उन्होंने पूछा क्वेश्चन शुरू करते। पहला क्वेश्चन की क्या उन्हें, हाउ इज जॉर्ज रिलेटेड टू हेलन, हाउ इज जॉर्ज रिलेटेड टू हेलन। जॉर्ज की ओदा की लग गया ओदा, दसो, अंकल। की लग गया अंकल, जिमें जेडे अपने चाचे ताए होंगे ने ना, चाचे ताए मामा, ठीक है, जिन्ने भी रिलेशन ने इंग्लिश च पहले उन्होंने कहने अंकल्स, की कहने अंकल्स। तो जी इन्हों की वाइफ होंगी उन्होंने आप कहने आंट। इदा जी मासी है उन्होंने भी आप आंट कहने, तो जेडे उन्होंने हसबैंड हो गए उन्होंने अंकल कहने। तो पहले क्वेश्चन का आंसर की बनया अपने को, आंट, ठीक है। फिर कहता हाउ इज हेलन रिलेटेड टू डियाना, की होगी वो आपस से क्या हो गए, कजन्स। चलो, हु इज द फादर ऑफ फ्लोइड, फादर ऑफ फ्लोइड अपन पता ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि उन्होंने दिता ही नहीं होया। सीबीडी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिता होया कितने भी फ्लोइड के फादर कौन ने, अपने को डियाना के फादर ने, हेलन के फादर ने, चार्ल्स के मदर फादर ने, पर अपने को फ्लोइड के फादर नहीं है, इस करके अपन की कहांगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो आ जाओ एक बार देख लो इसने दोबारा, 1 मिनट वेट कर लेना, उसे देख लो एक बार दोबारा। चलो चलिए अगे। आ जाओ। हाँ हूँ पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन शुरू हो गए है ना, कि जिसे पॉइंट करके दसदा। मैनू लगता है कि ये आप नैक्सट सैशन च रख लें, अज लिए आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप नैक्सट सैशन रखते हैं ताकि आप फैमिली रिलेशन थोड़ा बहुत कुछ होर समझ के आ जाइए, तो ज़्यादा छेती ना करिए, क्योंकि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग प्रोसैस करता ना भुलता भी ज़्यादा। कोशिश करो कि इन्ना तुम रिवाइज करके आओ। आप कैलेंडर पूरा खत्म कर लिया, फैमिली रिलेशन का बेसिक जो रिलेशन समझने वाले पार्ट से आप खत्म कर लिया, ठीक है। विच आप पजल्स भी कर लेने है ना। हूँ आप नैक्सट लैक्चर सिर्फ पॉइंटिंग वाला करा, पॉइंटिंग वाला तो कोई होर मैंने वधिया पजल्स मिले, कुछ होर वधिया मिले, इस आप वाले क्वेश्चन करा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आ क्वेश्चन तुम होमवर्क लेके जा सकते हो, मैं अगली बार आके सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।